Hello, everyone. My name is Malahim, and I welcome you all to this very special session that we're hosting at Mahfouz as part of our 16 days of activism. Today, we will be discussing the link between PCOS and gender-based violence. And for this, we have a very special guest with us today, Ms. Ikra Parveen Awan, who is a women's health activist, and she is also the founder of PCOS Helps PCOS Clinic and Awaz PK. So thank you so much, Ikra, for being with us here today. Uh, Thank you so much for having me. It's an honor to be here. oh, it's our pleasure. So if you don't mind, let's just dive right into the conversation. So could you start with telling us basically what is PCOS, the key symptoms, and any complications associated with it that affect daily life? Okay, sure. Okay, so PCOS is a hormonal condition which affects the body from head to toe of woman. और पाकिस्तान में recent survey के मुताबिक जो कि 2017 का एक survey है years ago, पाकिस्तान में 52% से ज़्यादा खवातीन PCOS से मुतासर हैं, which is polycystic ovarian syndrome. So in this hormonal condition, the symptoms manifest throughout the body from head to toe. Like आपको starting on the head, you have hair fall, physical symptoms, and then you have acne, that is also a physical symptom. Then you may or may not have polycystic ovaries, and then or hirsutism or all the physical symptoms that are associated with it. But it's the thing is that it's not all about the physical symptoms. We have emotional and psychological impact of pieces, which is huge and which is most ignored in Pakistan. In the psychological aspect, we have brain fog, we have more chances of stress, we have more chances of anxiety, we have body image issues, we have low esteem issues. All of this compiled together and form this thing called PCOS, which is in Pakistan very much ignored, क्योंकि पाकिस्तान में इन चीज़ों की जो भी सेक्शुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ इश्यूज हैं इनको हम डिस्कस करना पसंद नहीं करते हैं ज़्यादा. So, how it develops is that you have some hormonal imbalances in your body, and then it will lead to more effects, and then it may lead to development of cyst in the ovaries, or may not development of the cyst in the ovaries. And then it can lead to other conditions like irregular periods and all the other symptoms, and more chances of infertility, and all of these. Yeah, now let's move to impact. So, could you tell us what are some common challenges that women with PCOS they face? So, beginning with all the symptoms, सबसे पहला जो पाकिस्तान में ख़वातीन का मसला है वो ये है कि उनकी डायग्नोसिस सही तरीके से नहीं हो पाती, बिकॉज दैट इज़ अ कंडीशन जो आपकी बॉडी को हेड टू टो इफेक्ट करी है. और सबसे पहले कोई भी कंडीशन जो भी ख़वातीन में सबसे पहले एक्सप्रेस होती है तो उसको अगर सीरियसली टैकल किया जाता है तो दैट इज़ ओनली समथिंग दैट इज़ एसोसिएटेड विद रिप्रोडक्टिव हेल्थ. So what happens is typically that whenever the cycle is irregular, that is the time जब हमें लगता है कि अच्छा लड़की को कोई खास मसला है and she should consult any doctor. And the first person that came into the mind of anyone around is a gynecologist. हालांकि दिस इज अ हार्मोनल कंडीशन तो आपके पास एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, पर खवातीन को पता नहीं है. तो वो इरेगुलर पीरियड्स ही एक मेजर इशू बनता है जहां से ये स्टार्ट करती हैं. और वो डायग्नोसिस, बिकॉज दिस इज पीरियड्स, दिस इज पीसीओएस एंड इट्स अ हार्मोनल कंडीशन, पर डायग्नोसिस की जर्नी भी बहुत बुरी रहती है. इनफैक्ट अब तो देयर हैज बीन अ फ्यू मेडिकल प्रोफेशनल्स जो इस चीज़ को प्रॉपरली प्रोक्लेम कर देते हैं, बता देते हैं पेशेंट को भी कि दिस इज पीसीओएस, या इतना दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू बी, दिस इज गोइंग टू स्टे फॉर एवर, जो भी है प्रोसीजर. बट अगर हम कुछ सालों पहले तक का सोचें तो आई हैव सीन वुमेन स्ट्रगलिंग फॉर ईयर्स फॉर द डायग्नोसिस. तो सबसे पहले डायग्नोसिस इटसेल्फ ही एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि वो ये बता नहीं रही हैं कि ये पीसीओएस है. वो उनको बता रही हैं कि आप ये 3 महीने की दवाई खाएंगे, यू विल बी फाइन आफ्टर दैट दवाई, बट दे डोंट गेट बेटर आफ्टरवर्ड्स. अब उनको यही प्रॉब्लम है कि हमने तो 3 महीने का कोर्स कर लिया, हमारे मुताबिक तो उन्होंने बताया था कि ये मसला इरेगुलर पीरियड्स हैं, 3 महीने के बाद वी आर गोइंग टू बी फाइन, बट 3 महीने की दवाई के बाद वी आर स्टिल नॉट फाइन, या 1 महीना वी आर फाइन, 2 महीने वी आर फाइन, वी आर स्टिल नॉट बेटर. सो व्हाट हैपेंस इज, एक तो डायग्नोसिस बड़ी गलत हो जाती है. फिर उसके बाद क्या होता है कि ट्रीटमेंट, बिकॉज दिस इज अ लाइफ लॉन्ग थिंग. अगेन पाकिस्तान में ये नहीं बताते डायग्नोसिस करते वक्त भी. अगर वो आपको ये भी बता रही हैं कि पॉलिसिस्टिक ओवरीज हैं, वो क्या है उन्हें नहीं बताना, बिकॉज बहुत सी खवातीन को नहीं पता इन चीज़ों का. इनफैक्ट हम अगर आप एजुकेटेड वुमेन की भी बात करें, लॉट ऑफ देम डोंट नो अबाउट इट. सो पाकिस्तान में जो आपकी गायनी आपको नहीं बता रही है, सबसे पहले जाए आप गायनी के पास रहे हैं तो गायनी आपको नहीं बता रही है, तो इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन वुमेन कि ये क्या है.
फिर जब उनकी डायग्नोसिस गलत होती है, फिर उनका ट्रीटमेंट इस तरह चलता है कि 3 महीने के बाद लाइक अब हम ठीक हो रहे हैं, फिर वो ठीक नहीं हो रहे। ट्रीटमेंट इज लाइफ लॉन्ग, इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक 3 महीने, 6 महीने, 7 महीने। 3 महीने की दवाई के बाद यू हैव टू मैनेज योर सेल्फ, you have to come on the long term symptoms, you have to go for the regular checkups, you have to manage it properly with the diet, with the physical activity, with all the things that जो भी आपके symptoms जिस भी तरह के। अच्छा, PCOS there is a thing that it comes in the form of spectrum। तो आपके जो भी सिम्टम हैं वो कभी भी, अगर आप एक कमरे में 10 खवातीन खड़ी कर लें जो कि 10 की 10 पीसेस डायग्नोज हैं, 10 की 10 के सिम्टम सेम नहीं होंगे, दे वेरी। तो इनकी इंटेंसिटी वेरी करती है, एवरी सिम्टम मैनिफेस्ट इन अ वेरी डिफरेंट वे, देयर इज अ ह्यूज स्पेक्ट्रम ऑफ इट। तो इस केस में खवातीन को जो गाइडेंस आपकी, ऑब्वियसली जो आपके मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, आपको दवाई लिख के दी है, जिसने आपको केस आपका वो डील कर रहे हैं, उनको पता है। तो दे शुड बी द वन जो आपको गाइड करें कि आपने अपने स्पेसिफिक सिम्टम्स को किस तरह मैनेज करना है। बट this is a huge enigma in Pakistan, that women are not guided well. And then there comes the family aspect as well, and then there come the stereotypes, and there comes the financial problems, and all the emotional issues that are associated with PCOS. Yeah, it's unfortunate the challenges you mentioned, but you also mentioned जो family वाला aspect है, तो उसको जरा discuss करते हैं कि जो PCOS के symptoms हैं, ये family relations पे क्या impact रखता है? सबसे पहले जो, अगर हम अपने इंटीमेट रिलेशंस को देखें, अगर आप एक अनमैरिड लड़की की भी अगर आप देख लें, क्लोज फैमिली में देख लें, विद द मदर, विद द सिस्टर्स, विद द फ्रेंड्स, और ऑल अराउंड विद द ब्रदर्स एंड द फादर, what the thing comes up is कि because इसके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स हैं, बॉडी में इश्यूज आ रहे हैं, इसके डिप्रेशन, एंजाइटी आ रही है, इसके फिजिकल इम्पैक्ट्स हैं, आप एक्ने देख रहे हैं, आप हमारे ब्यूटी स्टैंडर्ड पाकिस्तान में और वैसे भी ओवरऑल भी ब्यूटी स्टैंडर्ड है सो हाई, अगर थोड़ा सा आप डेविएट कर जाते हैं उससे तो वो आपको एक पूरे उससे दायरा कार से ही बाहर निकाल दिया जाता है कि अच्छा नहीं, यू डोंट फिट द स्टैंडर्ड। तो जब ये सारा कुछ होने लगता है तो फैमिली जो है वो एक प्रेशर क्रिएट करने लग जाती है लड़की पे कि भाई पहले तो अपनी आखिरी ठीक कराओ, ये है वो। एंड देन देयर कम्स द पार्ट ऑफ अमिया हु ट्राई मिलियंस ऑफ टोटकाज ऑन यू बिकॉज सी थिंक अच्छा इससे तो मेरी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। एंड देन व्हेन इरेगुलर पीरियड पार्ट्स कम, तो पाकिस्तान में भी, इनफैक्ट ओवरऑल इन द वर्ल्ड, व्हाट इरेगुलर पीरियड्स इज that it is mostly associated with infertility and considering कि हमने खवातीन को एक स्पेसिफिकली एसोसिएट कर दिया है विद चाइल्ड बर्थ। सो इफ शी इज लाइक देयर आर सम लेस चांसेस ऑफ दैट, वी put the woman at pedestal and we do not treat her well because we think that she is not worthy of any sort of good treatment. सो पीसीओएस में जब आपके रेगुलर पीरियड्स आ रहे हैं तो आपको एक लेस वर्दी फीमेल कंसीडर करना शुरू कर दिया जाता है ऑल अराउंड, और जो फैमिली है वो उस चीज़ को कवर करने में लग जाती है इंस्टेड ऑफ सपोर्टिंग एंड कमिंग फॉरवर्ड इन हेल्पिंग देम आउट और एनालाइजिंग द सिचुएशन और हाउ द सिचुएशन अ बेटर वे, मेडिकल ट्रीटमेंट कराएं, उस चीज़ को इशू ना बनाए। इस चीज़ को एक बहुत ही बड़ा हवा बना दिया जाता है कि पता नहीं क्या हो गया उसको। एंड दे एक्चुअली stop her from coming forward. They stop her from telling it, sharing it around, doing all of that stuff. और अगर कोई खवातीन जो कि हमारी मैरिड हैं उनके लिए तो बिकॉज इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है। however I would like to mention कि PCOS is not all about infertility and there are a lot of cases जहाँ पे PCOS के बावजूद भी खवातीन ने कंसीव किया है। बट क्योंकि वो एक स्टिग्मा है कि इरेगुलर पीरियड्स हैं तो जो बच्चे नहीं हो रहे हैं, और बच्चे नहीं हो रहे हैं तो वुमेन इज नॉट वर्दी ऑफ एनीथिंग एंड ऑल अराउंड, जिसकी वजह से जो आपके इंटीमेट रिलेशंस हैं वो ख़राब हो रहे हैं, आपकी मैरिड लाइफ ख़राब हो रही है। एक तो वो एक चीज़ में कर दिया है कि अच्छा ये तो शी कैन नॉट बेयर चिल्ड्रन, शी इज़ इनफर्टाइल, शी यू नो हम तो दूसरी शादी कराएंगे, हम तो पता नहीं क्या क्या करेंगे। एक वो जो प्रेशर मैरिड ख़वातीन के लिए क्रिएट कर दिया जाता है। उसके साथ साथ जो इमोशनल कंस्ट्रेंट्स हैं, जैसे साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स हैं पीसीओएस के, जैसे डिप्रेशन है, स्ट्रेस है। सो द थिंग इज कि जो चीज़ें नॉर्मल कंडीशंस में स्ट्रेस और एंजाइटी या डिप्रेशन क्रिएट करती हैं, पीसीओएस में उनके 3 टाइम्स मोर चांसेस होते हैं। सो इट अफेक्ट्स 3 टाइम्स मोर टू अ वुमन हु हैज पीसीओएस, क्योंकि आप ऑलरेडी उसको एक एक मेडिकल कंडीशन चल रही है उसकी, फिर उसके साथ ये साइकोलॉजिकल और इमोशनल एस्पेक्ट्स क्रिएट होते हैं, तो शी इज मोर प्रोन टू डिप्रेशन, शी इज मोर प्रोन टू एंजाइटी, शी इज मोर प्रोन टू डिप्रेशन। एंड देन देयर कम्स अ ह्यूज थिंग व्हिच इज ब्रेन फॉग, when you cannot actually, when you feel that your head is foggy all the time, you don't remember things, you can speak clearly of the things। तो उस वाली चीज में एक एस्पेक्ट क्रिएट कर दिया जाता है कि जी
ये तो इनके तो ड्रामे हैं, ये लड़कियां करना नहीं चाहती हैं, इनको पता नहीं क्या मसले हैं। और which also leads to a lot of cases of domestic abuse in the families, because जब आपको लग रहा है कि she cannot give birth to a child, पाकिस्तान में वैसे बहुत सारे केसेस देखे हैं जिसमें मेल चाइल्ड ना होने की वजह से आपने डोमेस्टिक अब्यूज देखा है। तो if she is not giving birth, तो this worse. या दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टच ऑन कि जो क्रॉनिक स्ट्रेस आपने मेंशन किया और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो पीसीओएस की वजह से मैक्सिमाइज हो जाता है, तो वो डोमेस्टिक वायलेंस का रेंज बढ़ा देता है। और फिर एक ये चीज़ भी कि जो पीसीओएस के सिम्टम्स हैं, क्या वो मौका देते हैं अब्यूजर्स को? मतलब अगर आपकी फैमिली के अंदर अब्यूसिव अनमैरिड लाइफ है या मैरिड लाइफ है, दोनों के अंदर अगर फैमिली के अंदर अब्यूसिव टेंडेंसीज हैं, तो वो क्या आपके सिम्टम्स उनको मौका देते हैं कि वो मजीद आपको अब्यूज कर सके? एग्जैक्टली दे डू। जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया है कि इसका एक तो इमोशनल वल्नरेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों में डिपेंड कर रहे हैं, अपनी फैमिली पे डिपेंड कर रहे हैं, चाहे आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं, ऑल द कंडीशंस यू डिपेंड ऑन योर फैमिली। और उसके अलावा जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है, दिस इज वन ऑफ द ह्यूज एस्पेक्ट ऑफ पीसेस दैट कम्स विद इट, क्योंकि रेगुलर चेकअप्स हैं वो सब हैं। तो इट puts you in a position where you are more prone to all of such conditions, जहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस के चांसेस ज्यादा। डोमेस्टिक वायलेंस इज नॉट ओनली द फिजिकल वन, इट्स द इमोशनल वन एज वेल, विच इज ह्यूज। क्योंकि अब आपको पता है कि आपकी बच्ची को ये सारे मसले हैं, या आपको पता है कि आपकी बच्ची जो है वो डिप्रेशन में है, या फिर उसको एंजाइटी है, यहाँ पे स्ट्रेस उसका ज्यादा है। तो इस तरह की कंडीशंस में अगर आपकी फैमिली में कोई भी ऐसा है जिसको मतलब जिसमें टेंडेंसी है टू अब्यूज, दे एक्सप्लॉइट द सिचुएशन वेरी वेल। क्योंकि आप तो बिल्कुल वहां पे वर्नरेबल है ना, आपको तो नहीं पता कि आपने इसको किस तरह से कवर अप करना है, बिकॉज एक तो यहाँ तो आपकी डायग्नोसिस पहले बड़ी अच्छी हुई हो ना, आपको सब कुछ पता हो, आपको बताओ वे आउट क्या है, किस तरह से करना है। और विद द लैक ऑफ द लीगल इन्फॉर्मेशन दैट वुमेन हैव इन आवर कंट्री, उनको ये पता ही नहीं होता कि वो एक्सप्लॉइट हो रही है। अगर आप उनसे पूछे तो उनको लगता है कि मेरी अम्मी ने मुझे ये सब कुछ कहा है, तो मुझे मतलब आई कैन नॉट से एनीथिंग टू हर। हालांकि जो इमोशनल अब्यूज अगर हम अपने पेरेंट्स या पार्टनर्स के पार्ट पे देखें पाकिस्तान में या कहीं भी, तो दैट इज एक्चुअली जो कि इतना इग्नोर है कि हमें समझ नहीं आता कि हम इसको किस तरह से टैकल करें, किसी को बताएं बैठ के कि बता दिस इज इमोशनल अब्यूज। एंड आई रनिंग दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर 2 years, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ केसेस जहाँ पे यंग लड़कियां जो हैं मैरिड, तो दे हार्डली कम फॉरवर्ड, बिकॉज हमें तो पता ही नहीं है, हम तो कर ही नहीं सकते। वो तो सिर्फ फिजिकल अब्यूज में आएंगी ना सामने, उनको सिर्फ पता ही तब चलेगा कि ये हो गया। But unmarried cases में I have seen a lot of university girls coming forward with the stories, जहाँ पे उनको ये बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ा है पार्ट ऑफ देयर पेरेंट्स, जो कि उस चीज़ में एक तो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, दूसरा उस चीज़ में उसको बहुत ज़्यादा बॉडी बॉडी इमेज इश्यूज इतने ज़्यादा डेवलप करा दिए जाते हैं कि बच्चियां जो हैं वो बाहर जाना बंद कर देती हैं, लोगों से मिलना बंद कर देती हैं, घर वालों से बातचीत बंद कर देती हैं। सो आई हैव सीन वुमेन crying in front of the whole audience while explaining this. So yeah, it makes you way too vulnerable to all of this. या आपने जो इमोशनल अब्यूज वाली बात की ना, ये हमारी भी असल में जो लीगल प्रैक्टिस है, तो वो हमारी डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड है। तो ये चीज़ हम भी बहुत ज़्यादा इनकाउंटर करते हैं कि जैसे आपने बोला, जो अनमेरिड लड़कियां हैं वो तो आएंगी नहीं सामने इस तरह की केसेस में, लेकिन जो मैरिज मैरिड है उनके मसले होते हैं, तो वो भी इमोशनल अब्यूज, क्योंकि दैट इज द मोस्ट रैम्पेंट। फिजिकल तो चलो बहुत सारी और चीज़ों के अंदर भी आ जाता है, लेकिन इमोशनल एक ऑन गोइंग मसला और बहुत रियल मसला है। वो कोर्ट्स को समझाना, सारे स्टेक होल्डर्स को वो प्रूव करना, दैट इज सच अ हर्डल। और मतलब बाय फार मेजोरिटी ना, वो मतलब क्लेम आपका ऐसे ही चला जाता है, दे डोंट ट्रीट इट एज अ रियल घरेलू थिंग। मसला। हाँ हाँ, एग्जैक्टली। और क्योंकि हालांकि मतलब सिंध का लॉ इस चीज में काफी ज्यादा प्रोग्रेसिव है, लाइक देयर इज इमोशनल अब्यूज इन द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, लेकिन फिर भी माना नहीं जाता, तो ये है बहुत ज्यादा स्टिग्मा इसका। खैर, अगली चीज पे आते हैं, वो ये कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो हैं आपके, और जो हेल्थ केयर सपोर्ट सिस्टम है, इनका क्या रोल है इन गाइडिंग यू विद रिगार्ड्स टू नॉट ओनली योर वेल बीइंग, बट कि आपकी जो वायलेंस आप फेस कर सकती हैं, तो उसके अंदर वो आपका क्या रोल अदा कर सकते हैं?
सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी, जैसे मैंने पहले कहा, कि इस वक्त तो ये ऐसे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स बहुत कम हैं जो इस चीज़ को प्रॉपरली टैकल करते हैं, बहुत कम है इनफैक्ट। मैं कहूंगी कि जितने भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, क्योंकि वो एक बात है कि गायनी के पास सबसे पहले जा रहा है, तो गायनी का डिपार्टमेंट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बुरा चल रहा है। एंड इनफैक्ट मैं तो कहूंगी कि अगर किसी बंदे को हेल्थ का, पाकिस्तान का कोई भी कंडीशन देखनी है कि क्या चल रही है, तो वो गायनी जाके देख ले। बिकॉज वहां से पता चलता है कि एक तो ना सिर्फ उन औरतों को पागल बनाया जा रहा होता है, बल्कि एक बहुत ही नेचुरल और बेसिक चीज पे उनको अब्यूज और शेम किया जा रहा होता है। सो दिस इज the current scenario. However, yes, healthcare providers can help you, and I think they have the most responsibility of it, क्योंकि जब भी किसी को हेल्थ कंडीशन कोई भी हो रही है, तो उन्हें जाना तो उनके पास ही है। तो दे कैन हेल्प यू। हाउ दे कैन हेल्प यू, सबसे पहले तो जो भी डायग्नोसिस कर रहा है, चाहे वो गायनी कर रही है, चाहे एंडोक्रिनोलॉजिस्ट कर रहे हैं, उनका काम है कि वो आपको ये बताएं कि इसका क्या वे आउट है। ये असल आसान जुबान में उनको बताएं कि क्यों है, कैसे ट्रिगर हो जाएगा, और कैसे आपको हो गया, ये किस तरह बढ़ेगा। हो गया वाली तो है, we have a huge debate on it. We still lack a lot of research on it internationally कि क्यों हो गया, कैसे है। However, they can tell you the triggers major, कि चलो आप अपना नोटिस कर लो या जो भी है। एंड देन दे कैन प्रोवाइड यू द बेसिक प्लान कि अच्छा, ये मैं महीने की, ये मैं आपको दवाई का प्लान दे रही हूँ, हाउ दिस इज गोइंग टू वर्क। दिस, यस, इट्स गोइंग टू टेक सम टाइम, बट जो भी बंदा आपके पास आ रहा है वो आपको पे कर रहा है, चाहे आप सरकारी बैठे हुए हैं, चाहे आप उस पर बैठे हुए हैं, या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उनको बताएं। मैंने बहुत से केसेस देखे हैं, डॉक्टर्स का क्लेम होता है कि अब हम इतनी देर बैठ के उनको नहीं समझा सकते लड़कियों को, और आप देखें इनको ना कुछ समझाने लगो तो उनको समझ नहीं आती। आई डोंट थिंक सो कि उनको समझ आ रही है या नहीं आ रही, दैट इज समथिंग यू शुड बी कंसर्न्ड अबाउट। आप अपना रोल प्ले करें, आपका काम है कि आप उनको समझाएं, आप उनको गाइडेंस प्रोवाइड करें, उनको एक लेआउट दें पूरा कि आपने किस तरह चलाना है, उनको बताएं कि अच्छा अब ये होगा अगर, तो आपने मेरे पास आना है। ठीक है। सो अगर ये चीज आपके पास सारी उम्र रहनी है, तो आपको उसको सारी उम्र डील करने का तरीका उनको बताना चाहिए। आई नो फॉर यू इट माइट बी अनदर पेशेंट, बट फॉर द पर्सन दैट इज द होल लाइफ। वो उसको क्या पता क्या हो रहा है, बिकॉज आई हैव सीन अ लॉट ऑफ वुमेन आउटसाइड जिनके ये वाले मसले हैं। वो कहती हैं कि जी उनने कहा कि ये तो रोज का है ना, डॉक्टर साहब ने कहा ये तो रोज का है, मतलब उनका रोज का है ना, आपका तो रोज का नहीं है ना, यू आर अ पर्सन योरसेल्फ। तो healthcare providers can play the role in providing you a layout, and then they can provide you a way out कि अगर आपको इस तरह से अब्यूज को फेस करना पड़ता है तो उसको किस तरह टैकल करना है। इनफैक्ट सिंस आई हैव द पीसीएस क्लिनिक, सो वी हैव अ फर्टिलिटी पैकेज जिसमें वी हैव अ साइकोलॉजिकल सेशन एज वेल। तो दैट इज अ पैकेज जिसमें हम गायनिकोलॉजिस्ट के साथ सेशन करा रहे हैं, जिसमें हम डाइटिशियन दे रहे हैं, और फिर हम साइकोलॉजिस्ट भी दे रहे हैं, बिकॉज आई नो दिस सिचुएशन जो इमोशनल इम्पैक्ट आप पर डालते हैं और उसको साइकोलॉजिकली टैकल करना कितना इंपॉर्टेंट है। तो मेरा ख्याल है कि सबसे पहले अगर आप लोगों ने इस चीज़ को एक बहुत ही अच्छे वे आउट में टैकल करना है, तो वी शुड हैव अ होलसम प्लान फॉर इट, क्योंकि इट अफेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम हेड टू टू। तो यू नीड टू हैव पीपल जो आपको हर तरीके से केटर करें इस इशू को, जिसमें क्योंकि वी नो दैट इट्स समथिंग दैट कैन लीड टू domestic abuse in any capacity. We need to have psychologists on board, and then we need to have such resources out there जिनके बाद लड़कियों को ये पता चले कि अच्छा ये हो सकता है, तो हमने आगे ये करना है। or which is something we lag far behind. In fact, everyone in this world lags behind. लड़कियों को इतना empower तो हमें करना ही नहीं है। बिल्कुल, वेरी वंडरफुली एक्सप्लेन्ड। अब आखिरी में ना हम जरा टच करते हैं कि हमारे यहाँ और वैसे जनरली भी मतलब क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं फॉर वेमेन, जो उसको मदद करें इन टर्म्स ऑफ अब्यूज की हमने बात करी, या जो मिस अंडरस्टैंडिंग्स, एक्सप्लॉयटेशन, जो भी मतलब मसले पीसीओएस से क्रिएट होते हैं, तो उनके पास क्या रिसोर्सेज है कि वेयर दे कैन सीक हेल्प अभी तो एग्जिस्टिंग। हाँ, अभी तो सबसे पहले तो जो आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं उनसे आप इस चीज़ को डिस्कस करें, वो आपको एक साइकोलॉजिस्ट को रेफर करें, या साइकोलॉजिस्ट वाला भी आप एक सेशंस लें जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। फिर दे कैन प्रोवाइड यू वे आउट। उसमें मुझे लगता है कि हमें एक लीगल जो है इंफॉर्मेटिव सेशंस रखने चाहिए सबके साथ, ताकि उनको पता हो कि हाउ दे आर गोइंग टू लीड, हाउ दे विल प्रोसीड इन दिस फर्दर। जो कि दिस इज द होल थिंग जहाँ पे लड़कियां स्टैंड कर रही हैं, क्योंकि एक तो प्रॉपरली वो एक हेल्थ बैटल है उनकी, ठीक है, जो कि मेडिकल और साइकोलॉजिकल दोनों है। फिर उसके साथ साथ जब हम उसको कपल कर देते हैं विद ऑल द अदर सिम्टम्स एंड ऑल द स्टिग्मास एसोसिएटेड विद इट, तो इट मेक्स अ वुमन मोर वल्नरेबल। मेरे ख्याल में जो पहला स्टेप जो आप इस चीज में हो सकता है, वो मेडिकल प्रोफेशनल्स हो सकते हैं।
जो ये चीज में हेल्प करें। दूसरा, सोशल मीडिया, एज वी हैव फोन्स ऑल द टाइम विद अस। I honestly think that with the law society all around, we need to share the basic guidance of all of this to women around. ताकि अब हम फोन तो चला रहे हैं सब, हम रैंडम चीजें भी देख रहे हैं, तो ये प्रोसीजर्स जो हैं वो सोशल मीडिया पे इसको इतना सर्कुलेट करना चाहिए, दे ऑल नो के बेसिक स्टेप्स क्या होंगे। क्योंकि मैंने भी, अगर आप अपने घर में देखें, अपने आसपास में देखें, तो अगर कोई भी खवातीन है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम अपनी हाउस हेल्प्स को देख लें, उनको कुछ नहीं पता। इमोशनल अब्यूज को तो खैर उनको कुछ भी नहीं पता, और फिजिकल में भी उनको नहीं पता कि क्या प्रोसीजर्स हैं। तो Yeah. मेरा ख्याल है कि सबसे पहले गाइडेंस जो है वो फोन्स और डिजिटल मीडिया के थ्रू जो है उसको स्प्रेड करना चाहिए। और जो आपकी, अगेन आई वुड से कि जो आपके मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं उनके ऊपर एक बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है इस चीज को मैनेज करने की। तो whatever it is, we need to have a strong check and balance on them, and we need to put a strong constraint on their responsibilities in this regard. और अगर किसी को इस तरह के केसेस हैं तो मेरा ख्याल है कि people should consult around. Typically इस टाइम में अगर हम देखें तो बहुत ही कम options available हैं. We see a lot of few options that are available online as well, क्योंकि अब obviously this is the digital world, we all check everything online. तो बहुत ही कम ऐसे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं इस टाइम में जो कि इस चीज़ को डील करेंगे। However, there are a few platforms like yours, like mine, and like other few जो कि इस चीज़ में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है people should reach out. उसके अलावा इस वक्त we need a revolution on this because it's not. Yeah. एथिक्स की जो आपने बात की, मेडिकल एथिक्स की, दैट इज समथिंग आई थिंक अबाउट पर्सनली अ लॉट, क्योंकि हेल्थ केयर सिस्टम मतलब स्पेशली विद रिगार्ड्स टू वुमेन और जनरली भी मतलब बहुत ख़राब है। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है मेडिकल प्रोफेशनल्स की अथॉरिटी के ऊपर। तो दैट इज समथिंग दैट नीड्स टू गो इनटू देयर एजुकेशन एज वेल। बट Mhm. yeah, those are all the topics we had. Thank you so much, Ikra, for your insights. They were wonderful. बहुत educational होगा हमारी audience के लिए. And to our audience, I ask you, please go ahead and follow Ikra's pages, PCOS Helps, PCOS Clinic, and आवाज speak की उनकी links होंगी description में. And thank you all so much for watching and listening. Goodbye. Thank you so much for having. It was nice speaking to you. Yeah, it was our pleasure.